بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں عام خبر۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی، کابینہ بھی تحلیل۔ گورنر کا اسمبلی کی تحلیل پر دستخط سے انکار۔ وزیر اعلیٰ نے 12 جنوری کو اسمبلی تحلیل کی۔ آئین کے مطابق 2 روز بعد اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ پنجاب کا نگران اور وزیر اعلیٰ کون؟ 72 گھنٹے اہم۔ حکومت اور اپوزیشن لیڈر 3 نام دیں گے۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو فیصلہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ گورنر کا اسمبلی کی تحلیل پر دستخط سے انکار۔ وزیر اعلیٰ نے 12 جنوری کو اسمبلی تحلیل کی۔ آئین کے مطابق 2 روز بعد اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون؟ 72 گھنٹے اہم۔ حکومت اور اپوزیشن لیڈر 3 نام دیں گے۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی، کابینہ بھی تحلیل۔ گورنر کا اسمبلی کی تحلیل پر دستخط سے انکار۔ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون؟ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور اپوزیشن حمزہ شہباز سے نام مانگ لیے۔ حکومت اور اپوزیشن 3 نام دیں گے۔ اتفاق نہ ہونے پر پارلیمانی کمیٹی بنے گی۔ پھر بھی فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون؟ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور اپوزیشن حمزہ شہباز سے نام مانگ لیے۔ حکومت اور اپوزیشن 3 نام دیں گے۔ اتفاق نہ ہونے پر پارلیمانی کمیٹی بنے گی۔ پھر بھی فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ بہاولپور سے خبر دیں گے آپ کو۔ ڈسٹرکٹ کورٹ بار کے انتخابات میں حامد اختر نے صدر کی نشست جیت لی۔ عابد قریشی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ حامد اختر 500 ووٹ لے کر ڈسٹرکٹ کورٹ بار کے صدر منتخب ہو گئے۔ مزید جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی بالکل، بہاولپور میں ڈسٹرکٹ کورٹ بار کے الیکشنز کے ریزلٹس آ گئے، جس کے مطابق صدر کی جو نشست ہے وہ حامد اختر صاحب نے ون کی ہے اور عابد قریشی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ حامد اختر صاحب جیت گئے، کیسا فیصلہ؟ میں اپنے دوستوں کا یہ الیکشن میں نے نہیں لڑا، یہ الیکشن جو ہے یہ میں نے نہیں لڑا، یہ الیکشن لڑا ہے جنہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے، اور جنہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے وہ اس جیت کے یعنی حقدار ہیں، اس کی جیت کے مبارکباد کے حقدار۔ میں یہ جیت ان کے نام کرتا ہوں، یہ جیت ان کے نام کرتا ہوں۔ عابد قریشی، ان ایکسپیکٹڈ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ ڈھار کھار سے ہوں گے اور آپ ڈھار کھار ثابت ہوئے ہیں۔ صرف ایک منٹ میں جی سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے گروپ کا، ناصر جویہ صاحب کا، طاہر مفتی صاحب کا، ملک عامر چنٹ صاحب کا، راؤ کاشف صاحب کا، عمران اشرف صاحب کا اور دیگر راؤ ظفر صاحب کا، ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری کامیابی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ شراز احمد بری کا، عمر بھٹی کا، سارے گروپ کا، سارے اضلاع کے مسائل، جی بالکل انشاءاللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بار نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، میں اس بار کا دست بدستہ بہت۔ محمود ظہیر ہمیں ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن کے حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ۔ ملتان بار کے الیکشن کا نتیجہ آ گیا۔ سید وحید رضا بخاری صدر، مہر طارق سیال نائب صدر، جبکہ سید علی الطاف گیلانی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ 9 منتخب عہدیداران کو کندھوں پر اٹھا کر خوشی منائی گئی۔ سینئر وکلاء کو بھی ہار پہنائے گئے۔ مہار عمران کی رپورٹ میں دیکھ۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان کے انتخاب کا نتیجہ آ گیا۔ بار کی 16 نشستوں پر 30 امیدوار مد مقابل تھے۔ لائز گروپ کے ہمت یافتہ سید وحید رضا بخاری 1439 ووٹ لے کر صدر منتخب۔ مخالف امیدوار عمران خان خاکوانی 860 اور رانا مراج خالد کو 499 ووٹ ملے۔ 9 منتخب صدر سید وحید رضا بخاری تمام سپورٹران کا شکریہ ادا کیا، کہا وہ پروفیشنل وکلاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی شاندار جیت دی۔ اس ساری جیت میں میرے تمام دوستوں کا کردار ہے، ان دوستوں کا میں مشکور ہوں۔ اس پوری بار میں جس نے مجھے ووٹ دیا، جس نے نہیں دیا، اب میں تمام کا صدر ہوں۔ میں میرا خاندان یہاں پر لائز فیملی کے طور پہ جانا جاتا ہے اور شرافت ہمارا سرہ امتیاز۔ گیلانی گروپ کے سید علی الطاف گیلانی 1184 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ مخالف امیدواروں سید نوید رحمان ہاشمی 652، سید عارف حسن شاہ 639، ملک عدنان احمد 588 اور خالد خان بلوچ 130 ووٹ حاصل کر سکے۔ سب سے پہلے اپنے استاذہ کرام کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، استاذہ کرام سے، والدین کی دعاؤں سے اور اپنی پوری ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ میرے اس الیکشن کی کامیابی کی ذریعہ بنے اور وجہ بنے۔ محمد طارق سیال 1666 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب، جبکہ مخالف امیدوار فاض خالد 770 اور سعدیہ ارم
311 वोट ले सकी। ज्वाइंट सेक्रेटरी की निशिस्त पर रूबीना राना 1322 वोट लेकर कामयाब। हाफिजा रहमान 1284 वोट ले सकी। 1117 वोट लेकर मोहम्मद उमर महमूद कुरैशी लाइब्रेरी सेक्रेटरी की निशिस्त ले उड़े। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अदील अहमद कैसर अंसारी 958, जबकि सैयद मोहम्मद तारिक बुखारी 619 वोट ले सके। 1763 वोट हासिल करके मोहम्मद इम्तियाज जमील फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। मद्दे मुकाबिल रहीला मुबशिर क्लासरा ने 960 वोट लिए। कुल 5083 में से 2800 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। डाले गए वोटों की शरह 55.33% रही। कई साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मुझे पता है जो बाहर के मामलात हैं, जो मसाइल हैं, सीनियर और अपने दोस्तों की मशावरत से जो बाहर के बेहतरी में होगा वो करेंगे। जीतने वाले वकला के हामियों ने जश्न मनाया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और 9 मुंतखब ओहदेदारान को कंधों पर उठाकर खुशी मनाई। सीनियर वकला को भी हार पहनाए गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ओन अब्बास के साथ महर इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। जनूबी पंजाब के तमाम बात के इलेक्शन नताइज आ गए। भक्कर, बहावलनगर, लिया, कोटरद्दू, जामपुर, खानेवाल, सादिकाबाद और शुजाबाद में 9 मुंतखब ओहदेदारान के हामियों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। मजीद इस रिपोर्ट में। भक्कर बार के सालाना इलेक्शन में तारिक हुसैन बलोच 241 वोट लेकर सदर बन गए। मुखालिफ उम्मीदवार चौधरी मुमताज अहमद ने 207 वोट हासिल किए। तबस्सुम अब्बास खान जिस्कानी 231 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार चौधरी तनवीर ने 218 वोट हासिल किए। बहावल नगर बार से साबिक सदर सैयद अली हुसैन 310 वोट लेकर दोबारा सदर बन गए। मद्दे मुकाबल उम्मीदवार जुल्फकार बाजवा 274 वोट ले सके। इरशाद फरीद 353 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, जबकि इनके मुखालिफ उम्मीदवार अमानुल्लाह को 241 वोट मिले। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने जीत का जश्न मनाया और भंगड़े डाले। शेख जावेद लिया बार के सदर, जबकि जोदत कामरान वंडर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। वकला ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की, हार पहनाए और ढोल की थाप पर झूमर डाली। 9 मुंतखब जनरल सेक्रेटरी जोदत कामरान का कहना था कि बार को मिसाली बनाएंगे। कोटअद्दू डिस्ट्रिक्ट बार का भी नतीजा आ गया। हसनैन रिजवी 167 वोट लेकर सदर बन गए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार गुलाम शबीर रिजवी ने 159 और मलिक मुनीर कोरिया 90 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। उमर हौद 234 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, जबकि आमिर सुल्तान 150 वोट लेकर दूसरे और अबू बकर चौधरी 24 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। जाम नईम 235 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब, जबकि इमरान हकीम 132 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हिना यूनस 235 वोट लेकर लाइब्रेरी सेक्रेटरी, जबकि चौधरी जया 150 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कशको सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि राशिद चुगताई 176 वोट हार गए। 176 वोट से हार गए। जामपुर बार में ग्रैंड अलायंस ने मार्का मार लिया। पीर मोहम्मद अहमद बोदला एडवोकेट 144 वोट लेकर सदर मुंतखब। मद्दे मुकाबल मंसूर अहमद खान मस्तोई 103 वोट ले सके। मिर्जा मोहम्मद यासिर मुबीन 145 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, जबकि मद्दे मुकाबल उम्मीदवार मलिक वाजिद नदीम मरकंज 99 वोट ले सके। खानेवाल ग्रैंड अलायंस लॉयर्स फोरम के अजीज खान पिनिया सदर, डेमोक्रेट्स लॉयर्स फोरम के राना काशिफ एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सादिकाबाद बार से छठा इत्तेहाद ग्रुप के पूरे पैनल ने मैदान मार लिया। मियां अब्दुल हफीज एडवोकेट 239 वोट लेकर सदर मुंतखब, जबकि खालिद बिन सईद 145 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रईस जान मोहम्मद महर 243 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी बन गए, जबकि रईस जहांगीर अहमद 139 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। शुजाबाद बार से मियां अयाज बोदला 220 वोट लेकर सदर, जबकि मलिक इमरान खाकी 132 वोट लेकर हार गए। जनरल सेक्रेटरी पर 2 रोज कबल इसहाक भट्टी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। राव शहजाद सलीम 185 वोट लेकर नायब सदर, करम हुसैन खाकी 200 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी, मलिक राशिद अराई 182 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के सीट पर मलिक शहजाद और जाम शाहिद दोनों 175 वोट लेकर बराबर रहे। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने भंगड़े डाले और ढोल की थाप पर जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। तोंसा, फोर्ट अब्बास, हासिलपुर, दुनियापुर, यजमान, जतोई, लोधरा और चौक सरवर शहीद बार के भी नताइज सामने आ चुके हैं। 9 मुंतखब ओहदेदारान के हामियों ने जीत का जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। जीतने वालों को फूलों के हार भी पहनाए गए। मजीद इस रिपोर्ट में।
शरीफ डिस्ट्रिक्ट बार का नतीजा आ गया। सरदार मजहर जहूर 140 वोट लेकर सदर, सरदार हम्माद खान लगानी 151 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। 274 वोट में से 260 वोट कास्ट हुए। मियां शफीक भट्टो एडवोकेट 67 वोट लेकर फोर्ट अब्बास बार के सदर मुंतखब। मध्य मुकाबिल इकरामुल हक एडवोकेट 61 वोट हासिल कर सके। नायब सदर की सीट पर बिला मुकाबला फरहान इसम गुराया कामयाब हुए। अब्दुल रजाक 59 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार शबीद अहमद हंजरा 60 वोट हासिल कर सके। हासिलपुर बार में शाह ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप में कांटेदार मुकाबला हुआ। शाह ग्रुप के लतीफ नवाज कांजू 157 वोट हासिल करके सदर और इसी ग्रुप के मियां मजहर हयात 144 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जफर इकबाल भट्टी एडवोकेट 104 वोट लेकर दुनिया बार के सदर मुंतखब हो गए। मध्य मुकाबिल उम्मीदवार चौधरी ताहिर रसूल एडवोकेट 99 वोट ले सके। चौधरी अब्दुल राउफ राइच एडवोकेट 115 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी, जबकि अली रजा चीमा एडवोकेट 79 वोट लेकर हार गए। यजमान बार का भी नतीजा आ गया। जफर इकबाल चौधरी 105 वोट लेकर सदर मुंतखब। मध्य मुकाबल अफजल देओल ने 88 वोट हासिल किए। चौक सरवर शहीद बार का भी रिजल्ट आ गया। मलक अयूब मुगल 67 वोट लेकर सदर और साजिद चांडिया 61 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। और अब बात करते हैं मुल्तान में सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए मजीद मुश्किल हो गया। घंटों लाइन में धक्के खाना तो मुकद्दर था ही, अब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने ACCT के नामुनासिब रवैये पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। महंगाई से तंग शहरी आटे की बंदिश पर मजीद परेशान हो गए हैं। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान इंतजामिया शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम। मर्दो खवातीन कई दिनों से आटे के एक थैले के लिए घंटों लाइन में लगकर धक्के खाने पर मजबूर हैं। रही सही कसर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ हड़ताल के ऐलान ने पूरी कर दी। शहरियों की परेशानी में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। वहाँ से ले लेते हैं स्टोरों पे से, स्टोरों पे के ऊपर भी है ना मैसेज का चक्कर डाल दिया, धक्के देते हैं, कहते हैं नहीं मैसेज आएगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस गई है। यहाँ खड़े होके चले जाते हैं भाई, और आटा नहीं हमें मिलता। कितनी बड़ी सुबह के हम 8 बजे के आए हुए हैं और आटा अभी तक नहीं मिला बिल्कुल भी हमें। शहरी कहते हैं सारा दिन गुजर जाता है लेकिन आटा नहीं मिलता। गरीब सस्ते आटे के हसूल में ख्वार होकर रह गए। जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मेंबरान का कहना है कि जिले इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर हड़ताल की है। हमारे मुतालबात ना माने तो हड़ताल जारी रहेगी। इसी तरह के लड़ाई झगड़ा एसोसिएशन हो या गवर्नमेंट हो, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए और एक दूसरे के लिहाज और बाकी चीज़ें जो हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। जब वो आते हैं किसी भी पॉइंट पर चेकिंग करना उनका हक बनता है, सारे करे। हम कोई खा नहीं रहे, हम कोई मिलावट नहीं कर रहे। वो आए अपना चेक करें, अगर कहीं कोई मुश्किल हो तो आदमी करे। लेकिन अगर वो ऐसे डायलॉग बोलेंगे और हमारे एक फ्लोर मिल वाले के मैनेजर को और 3-4 बंदों को उन्होंने डाले पर जिस तजलील की है और जिस तरह डाले पर लेकर उनको जेल बंद करवाया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिले इंतजामिया और मिल्स मालिकान के आपसी इख्तलाफात से नुकसान आवाम को हो रहा है। शहरियों ने आला अफसरान से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद तलहा के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। लिया में माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर आरफा करीम रंधावा की बरसी। आरफा करीम को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तकरीबात हुई। तालिबात ने आरफा करीम रंधावा की तस्वीर उठाकर तालिबात के खराज अकीदत पेश किया। मज़ीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। जी पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाली अरफा करीम रंधावा की आज जो है बरसी मनाई जा रही है। इस वजह से अगर बात की तो आज भी मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर अरफा करीम रंधावा की को खिदमत खराज तहसीन खराज अकीदत पेश करने की वजह से मुख्तलिफ दुआ तकरीब का इनेकाद किया गया। मैं मौजूद हूँ न्यू विजन साइंस अकेडमी के अंदर, जहाँ पर भी तालबात ने अरफा करीम रंधावा की तस्वीर जो उठाकर उनकी जहाँ खराज अकीदत पेश किया तो वहीं पर उनके लिए दुआ भी की गई। कुछ बच्चों से बात भी करते हैं। बेटा क्या कहेंगे अरफा करीम के हवाले से? Arfa Kareem was born on 2nd Feb 1995 in Faisalabad. He was a Pakistani student and a computer prodigy who was provided with the award of Microsoft Certified Professional in 2004 by Bill Gates. We also try to compete our differences and work for our honor of our country, and we will inshallah like Arfa Kareem. आज बिल्कुल बच्चे इस बात का आज़म के साथ कर रहे हैं कि वो भी अरफा करीम की तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। बेटा आप क्या कहेंगे? First of all, I want to say that Arfa Kareem is the role model of our youth and she will be always the role model of our youth. हम सब की यही कोशिश होगी कि हम अरफा करीम की तरह बने, क्योंकि उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो हम सब के लिए काबिल
फ़ख्र है। और यकीनन ये काबिल फ़ख्र है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आज मुख्तलिफ टीचर्स हैं, उनकी तरफ से टीचर्स ने भी बच्चों को अरफा करीम की ज़िंदगी के हवाले से और इसके साथ साथ दीगर जो पाकिस्तानी हीरोज़ हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी मुख्तलिफ यहाँ पर लेक्चर दिए और उनको उस ज़िंदगी के बारे में बताया ताकि ये बच्चे जो हैं बड़े होकर अपनी जो मुल्क के लिए खिदमात हैं उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। जी जाहिर सरफराज, बहुत शुक्रिया। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम निजी होटल में ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से सेमिनार। डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कसीर तादाद में शरीक हुए। सही ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से निजी होटल में ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कसीर तादाद में शरीक हुए। वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख आसिम सईद का कहना था कि सेमिनार का मकसद डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आगाही फराहम करना है। आज का जो इवेंट है उसमें हमने मोस्टली जो फोकस किया वो ई कॉमर्स को फोकस किया है। मोस्टली वो बिजनेसेस, वो एसएमईज जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके के साथ काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके के साथ जो है वो ऑनलाइन के ऊपर लेके आया जा सकता है, जिससे वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस जो है, जो उनकी टारगेटेड मार्केट जो है, जो उनके टारगेटेड परचेजर जो है वो बढ़ाए जा सकें और वो किस तरह इंटरनेशनल जो है वो कस्टमर से, क्लाइंट से जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम ये समझते हैं भी मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये मुस्तकबिल है। डिजिटल मार्केटिंग के माहिर तनवीन अंडाला का कहना था कि नौजवान नस्ल को इस हवाले से आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल डिजिटल मार्केटिंग का है। फ्यूचर जो हम सुनते थे कि फ्यूचर आईटी का है, फ्यूचर आईटी का, वो फ्यूचर आ चुका है। अब राइट नाउ जो कुछ आप देख रहे हैं, जो आपको सामने चीज़ें आ रही हैं, ये फ्यूचर है जिसके बारे में हम सुनते आते थे, पढ़ते थे। तो आज आप अगर इस फील्ड को, आईटी में फील्ड को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप बोर्ड को मिस कर देंगे। सेमिनार में डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात कसीर तादाद में शरीक हुए। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। रहीम यार खान में ज़ीरो हेल्थ केयर पाकिस्तान के ताउन से होम डेकोर फर्नीचर एक्सपो। एक ही छत तले फर्नीचर के बड़े ब्रांड सस्ते दामों दस्तयाब। मज़ीद देखिए आसिम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। अब रहीम यार खान के बासियों को खरीदारी के लिए लाहौर या कराची का सफर नहीं करना पड़ेगा। होम डेकोर फर्नीचर एक्सपो ने सारी परेशानियां खत्म कर दी। एक ही छत तले 50 बड़े ब्रांड्स ने दी 50% तक बड़ी राहत। घर सजाना हो या जहेज बनाना हो या फिर ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना हो, तमाम अशिया एक ही छत तले दस्तयाब हैं। फैमिलीज देखने आए और खरीदारी किए बगैर न जा सकें। ये सोफे वगैरह यहाँ पे एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटी और ब्रांड्स बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा जो हमें इस सिटी में नहीं मिल सकती वो पूरे पाकिस्तान में हमें एक ही जगह पे, एक ही सिटी में मिल रही है। सॉलिड वुड में हम काम करते हैं, हाई ग्लास आपके फिनिश हमारी होती है, बेस्ट क्वालिटीज़ में हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं। सॉलिड वुड में हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और मतलब घरेलू जो चीज़ें हैं बड़ी वीआईपी हैं और मयारी हैं। डेफिनेटली डिस्काउंट पे मिल रहा है और एक ही छत में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। मैंने यहाँ विजिट किया है, मुझे बहुत से डिज़ाइंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। बहुत अच्छा फर्नीचर है, 50% ऑफ है और लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं और फैमिलीज को विजिट करना चाहिए। मैंने खुद शॉप किया यहाँ पे। अच्छा फर्नीचर सस्ते दामों मिल जाए तो सोने पे सुहागा। होम डेकोर फर्नीचर एक्सपो ने शहरियों को सहूलियात दी तो ब्रांड्स को भी मार्केट तक रसाई का प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और रहीम यार खान आज सेकंड डे है हमारा, कल भी अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त क्राउड था, आज भी बड़ा ज़बरदस्त क्राउड है। रहीम यार खान के अवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पे आएँ, यहाँ पे अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अंडर वन रूफ आपको 50 ब्रांड्स जो है उन्होंने डिस्प्ले किया है, डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हैं, ठीक है। और कल लास्ट डे है, यहाँ पे बहुत फिक्स प्राइसेस, अच्छे प्राइसेस हैं, 50% अप टू ऑफ लगा हुआ है। तो मैं रहीम यार खान के अवाम को यही कहूँगी कि आएँ, फैसिलिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिली हुई है, अप टू 50% है, तो आप मज़ीद आएँ, शॉपिंग करें, जहेज़ की शॉपिंग करें, शादी की शॉपिंग करें। हमारे डिज़ाइन बड़े यूनिक हैं और डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स हैं हमारे सारे। और दूसरी बात यह है कि बड़े ही मुनासिब रेट्स हमने लगाए हुए हैं। सारा हैंडमेड स्वाति फर्नीचर है ये और बहुत लोग ये पसंद कर रहे हैं। जो पुराना रवायती टच है हमने वो उसको दिया है। और हमारा फर्नीचर के 2-3 खसूसियत, एक तो ये पेवर वुड में हम बना रहे हैं, लकड़ी में, और दूसरा ये एंटीक सरस के हम बना रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में म्यूनिसिपल कमेटी कोट समावा में लाइब्रेरी के इफ्तिताह पर सूफी नाइट। आइए आपको लिए चलते हैं। सूफी नाइट की तकरीब जारी थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।